Welcome to Raw and Real Romika. I'm recording this video after a very long time, after quite a long break, because I thought पता नहीं करना चाहिए कि नहीं. And now I'm back, and I'm still not sure if I should do this or I don't know, but कभी लगता है कि बोलना है, कभी लगता है कि नहीं है ज़रूरत, कभी लगता है कि है ज़रूरत, कभी लगता है कि I'm stopping myself only because of some fear. कभी लगता है कि I'm forcing myself because I'm trying to pressurize myself to do something, to do more. Because what I'm actually doing is not enough. कभी लगता है कि what I am doing is going to improve if I also do something else which is in my heart, which I keep coming back to, which is thinking about creating these videos. I don't know why. I am still in this dilemma and I don't know कि ये कब तक चलने वाला है. But I think without caring much, अभी जैसे भी क्रिएट कर रही हूँ बना ही देती हूँ वीडियो, क्योंकि अब पूरा सेटअप कर ही लिया है. रात के 12 बज रहे हैं लेकिन फिर भी बोलने के लिए बैठी हूँ तो बोल ही देती हूँ और फिर उसके बाद उठूँगी. After pouring out all my honesty with all my heart, now I feel much better. Now I feel lighter. Now I think I'm more ready to speak on the topic. Let's stick to the topic. I love watching C-dramas, but I am also thinking how it can impact my mind. And what would I tell my younger sister if she was watching C-dramas? What would I tell her? एक पर्सपेक्टिव शेयर करना है बेसिकली, सिर्फ एक ही है, which is about how it can impact a young girl's mind. पहले तो I want to say कि जो हम इतना बोलते हैं कि या सुनते हैं लोगों को बोलते हुए कि रील्स स्क्रॉल करते रहना या फिर वीडियोस देखते रहना या फिर सीरीज़ देखते रहना, फ़ोन पे लगे रहना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है. तो I beg to differ. I think it's not true at all. It's not just distraction. It can be something more. If we can make something more out of it, then it can definitely be something much more useful than we give it credit for. सी ड्रामास के बारे में एक्चुअली मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ दैट मार्केट ऑफ यंग वुमेन जो कोई टैप इन ही नहीं कर रहा है, इसलिए इनके लिए कोई कंटेंट है ही नहीं ज़्यादा जो हमारी कंट्री में बन रहा हो, which is why somewhere we are dependent on other countries for such type of content which is lighter, which is more fun, which can include a little bit of emotion rather than fighting and murders and you know what I mean. वो जो मार्केट है जो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहता है, उसके लिए कोई कंटेंट बन ही नहीं रहा है मुझे लगता है इंडिया में. इसीलिए सी ड्रामास के बारे में मैं बात कर रही हूँ, which is what gained my attention to, and I am
not talking about K dramas because मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया. मैंने एक दो का फर्स्ट एपिसोड देखा लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे. लेकिन सी ड्रामाज में मुझे I can say that whether it's the conversations, whether it's the depth of the personalities that the characters have, और उनका ग्राफ, उनकी जर्नीज, और हर एक की स्टोरी लाइन, हर एक कैरेक्टर की उसमें एक डेप्थ होती है which is more fun to watch, and it also teaches you a lot. तो आई थिंक कि सी ड्रामास की वजह से मैंने काफ़ी साइकोलॉजी सटली सीखी है. किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशंस में काम करते हैं और उनके प्रेशर्स क्या रहते हैं, क्या एनवायरनमेंट्स रहते हैं, क्या सोच रहती है. ये सब एक ड्रामा के थ्रू भी बिना आपको खुद के एक्सपीरियंस के आपको पता लग सकता है. that is what media does, right? That's what content does for you. And I think वो सी ड्रामास ने किया है, which is what I think the pros of watching something like that is consuming content which is richer in that sense. इस तरह से देखा जाए तो it's not a distraction. In fact, I would also like to include कि आपकी फोकस की शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है. If you can focus on watching something that interests you and you can watch it continuously, it also implies that you're focusing on something, right? And it in a way is a practice for your focus, the attention span. तो कैसे हुआ डिस्ट्रैक्शन अगर आपको प्रैक्टिस हो रही है कि आप लगातार एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड इट हैज़ गेन्ड योर अटेंशन, और आप फिर उसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहे हैं. इट इज़ मेडिटेशन, इट इज़ अ प्रैक्टिस. अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो वीडियो बंद कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है. लेकिन जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, आई वॉन्ट टू टॉक टू देम कि डू यू फील गिल्टी इफ़ यू spend your time consuming something which could be considered a distraction, या फिर you want to see it in that light? क्योंकि गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो किसी को ऊपर लेके नहीं जाता, नीचे लेके जाता है. इसलिए this is the first thing that I would tell my younger sister कि गिल्ट मत रखना कंटेंट कंज्यूम करने में कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. नॉट नेसेसरीली, इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू. हो सकता है कि वो काम आ रहा हो तुम्हारे, शायद पता नहीं लगे कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से ऐसा है जो तुम्हारे अंदर जा रहा है और शायद तुम्हें उसकी ज़रूरत है, इसीलिए जा रहा है. तो गिल्ट रखना ये सोच के कि बाकी लोग कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. इट डजंट हेल्प.
गिल्ट फ्री होके जो करना है करना, और उससे कुछ सीख लेना. दिस इज़ अ बेटर वे टू लुक एट इट. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड टेल माय यंगर सिस्टर. द फर्स्ट थिंग, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है, इसमें ये भी कहते हैं कि जो परफेक्शन हमें दिखता है वो रियल लाइफ में नहीं होता. स्टोरीज़ में दिख सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता, और किसी के साथ भी नहीं होता. ये बिलीफ सिस्टम, it is something that is affecting our minds. If you are watching something really good, something that is really refreshing, and something that is really powerful, और फिर हम सोच रहे हैं कि this is not real and this cannot happen in my life, aren't we denying something good to even try to enter our lives? We are in a way denying its entry by simply saying that कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सच होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है. ये अगर कुछ अच्छा दिखता है कहीं भी, तो उसको ऐसे ही नकार देना कितना सही रहता है. और अगर ये इसका उल्टा कर दें कि नहीं, if this is something that is interesting to watch, that is actually likable, something that may not always be true in real life for other people, लेकिन why can't it be true for me? If something is good on screen for someone else in a false reality, it can be true for a real person in real reality, in the real world. क्यों नहीं? My point is, and this is what I would tell my younger sister if I had one. I don't have one, but I think she is watching. कोई भी अच्छी चीज़ जो देखो, उसको कभी ये मत कहना कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता या ये रियल लाइफ में नहीं होता. और कुछ भी नेगेटिव देखो जिसमें कुछ ऐसा है which is not perfect, never try to relate to that character in the story. Avoid exaggerating negative characters' portrayal and their relatability in your own life, right? If it is something that does not feel good, make sure that you are not consuming it emotionally. Be a little distant from it emotionally. उस केस में definitely tell yourself that this is not true and this is not true for me and for my world, for my reality. मतलब जो हमें करना चाहिए वो ये है मेरे हिसाब से कि if you see something, if you watch something good, accept it, allow it for yourself to कि ऐसा हो सकता है. Never deny it at least कि ऐसा होता ही नहीं. And at the same time, when you watch something negative, never try to relate कि अच्छा मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है क्या, और किस तरह से हुआ है. Avoid exaggerating is what I'm saying. कि अगर हुआ भी हो ना ऐसा कुछ कि स्टोरी में कुछ ऐसा देख के आपको कुछ याद आ रहा है अपना इंसिडेंट और आपने उससे रिलेट किया है, उसको फिर अलग रख दो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो.
उसमें इमोशनली बहो मत कि अब उस कैरेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, देन दैट ऑल्सो बिकम्स योर स्टोरी। ऐसा नहीं है, योर स्टोरी इज़ डिफरेंट, उनकी स्टोरी अलग है, लेकिन आपकी कहानी उस तरह से नहीं जाएगी जिस तरह से उस ड्रामा में ड्रामेटिकली हो रही है। बिकॉज उस ड्रामा में उसकी स्टोरी घूमती रहती, लेकिन रियल लाइफ में डोंट अलाउ दैट टू हैपन विथ यू। जैसे हम कुछ देखते हैं तो स्टोरीज में जनरली द फॉर्मेट दैट दे फॉलो इज दैट देयर इज अ सिचुएशन and then something good is about to happen, and then that happens, and then a problem comes. So after everything, after every good thing, a problem has to appear. ये पैटर्न है स्टोरी क्रिएशन का, and you can see it generally in all content. लेकिन ये इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, ये रियलिटी में नहीं होता। अच्छे के बाद प्रॉब्लम ही आए, ऐसा सबकॉन्शियस में हमारे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं और बार बार करते हैं, और हर तरीके के कंटेंट में ऐसा ही होता है, हमारा सबकॉन्शियस बिलीफ भी ऐसा बन सकता है, एंड वी माइट स्टार्ट बिलीविंग दैट दिस इज़ व्हाट हैपेंस। और फिर वो नॉर्मल लग सकता है, लेकिन यही तो फॉल्स है। इसको डिनाई करना है, इसको बोलना है कि ये नहीं होता। उन अच्छी चीज़ों को नहीं बोलना है नहीं होता, जो एक्चुअल में अच्छी है। उनको तो बोलो कि हाँ होता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा बच के रहो कि हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा अच्छा ही होता है। जो भी हम देख रहे हैं उसके हिसाब से वो हमारे माइंड को कंट्रोल कैसे कर रहा है, इस पे थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। हमारे क्या बिलीव्स बनते जा रहे हैं उसको देखते देखते। कोई कैरेक्टर वीक होता है तो क्या हम भी उसकी तरह चेंज हो जाते हैं? कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन एरोगेंट होता है, तो क्या हम उसके जैसे हो रहे हैं? मतलब क्या हमारी सोच भी उस तरीके से चेंज हो रही है, सटली, बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे? क्या कोई इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा है कोई भी कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं? क्या हम उसके हिसाब से ढल तो नहीं रहे? अगर ढल भी रहे तो ढल जाओ, लेकिन उस कैरेक्टर को पकड़ो जो सही है आपके लिए, और उस कैरेक्टर को पकड़ो, उस कैरेक्टर की उन ट्रेट्स को ही पकड़ो जो सही है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन, कि make sure, this is what I would tell my younger sister, when you're consuming something so powerful like a C-drama, because it captures your attention like anyway, lekin don't let it control you in any way, and make sure that you're not allowing it to control you। और उसके लिए थोड़ा ध्यान शायद रखना पड़ेगा, क्योंकि एनीवेज अगर हम कोई भी कंटेंट देखें, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एनी कंटेंट, उसके हिसाब से हो सकता है कि हम अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस ले आए उसको देखते देखते ही। बिकॉज आई फील कि पर्सनालिटी मैलिएबल होती है, वो चेंज हो सकती है और बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी हार्ड, वो काफ़ी आसानी से कुछ ऐसा
पावरफुल देखते देखते तो बहुत ही आसानी से वो चेंज कर सकता है हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीव्स को। हो सकता है हम पहले किसी और तरीके से सोचते हो और कुछ हम देखें उसकी वजह से हमारा बिलीफ ऐसे चेंज हो जाए। अगर वो अच्छे के लिए हुआ, अच्छा बिलीफ है तो सही है, लेकिन अगर वो कुछ नेगेटिव है तो वो सही नहीं है। और वहाँ पे वो कंटेंट हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि वो नहीं होना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल कि व्हाटएवर वी आर वाचिंग, एंड वी आर वाचिंग इट फॉर फन, जस्ट फाइन। और उसके फ़ायदे भी हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन वो हमें कंट्रोल ना करे, बिकॉज इट्स कंटेंट एंड whatever we are putting inside ourselves, that is going to reflect on the outside, तो वो हमें बाहर दिखेगा। तो या मेरा पॉइंट यही है कि जो हम देख रहे हैं और जो हम देख के उसको सोच रहे हैं या किस हिसाब से चेंज कर रहे हैं अपनी सोच को, उस हिसाब से हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड भी चेंज होगा। द बेसिस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज दिस। तो इफ़ यू अग्री कि ऐसा होता है तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बट इफ़ यू डोंट नो दिस फैक्ट तो थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। लेकिन मेक श्योर ऑलवेज कि कुछ भी हो, you are discerning it correctly. Whatever you are watching, वो आपको डिक्टेट नहीं कर रहा है कि रियल वर्ल्ड में कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। आप डिक्टेट कर रहे हो कि रियल वर्ल्ड में आपके लिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। जो आप देख रहे हो वो आपके लिए, आपकी रियल लाइफ में होगा या नहीं होगा, ऐसा होता है या नहीं होता है, वो आप डिसाइड करोगे। कंटेंट नहीं डिसाइड करेगा कि ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। वो नहीं बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, वो आप बताओगे। एंड दिस इज़ व्हाट यू मस्ट पे अटेंशन टू when you consume something so powerful like C-dramas. Why? Because it can affect your thoughts and your beliefs. And this is the perspective that I wanted to share. Without giving you any examples, I have shared what I wanted to share. Assuming that my younger sister is smart enough, she would understand. She would know what I'm saying. Because somewhere she also knows. And she knows it better than me. So I think जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया. And I know that I've kept my voice, my volume very low. But I think कि मैंने माइक को पास रखा था और उसने पकड़ लिया है. और quality of the audio is not that bad. And I can't see my video because I'm not wearing my glasses. So I don't know how the video is looking like. But this is how I initially thought I would record this video. But इसे पास में आके बोलने से ज़्यादा ऐसा लगता है कि now I'm talking to a real person. Oh, yeah. I'm realizing that I've actually talked to my younger sister, maybe. Are you my younger sister?
एक पॉइंट और था, फाइनल पॉइंट. You control your reality is a fact. लेकिन वो कैसे करना है? That is also something that you should know. And why I would tell this to my younger sister is because as a girl, you have that power in you जो कुछ भी क्रिएट कर सकती है. वो शक्ति हो तुम. तो कोई और आके वो शक्ति को मैनिपुलेट करे, चाहे वो कोई कंटेंट हो, चाहे वो कोई इंसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई इंसान आपको कुछ नहीं आके बताएगा. कोई इंसान आपको आके इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मैनिपुलेट नहीं कर सकता एक तरीके से सोचने में. जिस तरीके में आप सोच ही ना पाओ कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो आप खुद डिसाइड करोगे, वो आप खुद डिसर्न करोगे, खुद समझोगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. And this is what applies to any content that you watch or any person that you meet in your life. Don't let them dictate how you feel, right? Don't give them that power to influence your thoughts. Your thoughts are your own. Own them. You decide for yourself. What is it that you want? What is it that you need? And what is it that you don't want? What is acceptable? What is not acceptable? You decide that for yourself. You decide that for yourself. Not anyone else. No one else can decide that for you. No content, no person. Right? I just want you to remember that. Because content consume करते करते एक तरीके से ही ना सोचने लग जाए हम, क्योंकि हम एक ही तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, तो क्या हम उसी तरीके से तो नहीं सोच रहे हैं. खुद की क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में बेस्ट क्या होता है. जो हम देख रहे हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव है. चाहे जितना भी देख लो वो है तो उतना ही ना, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ हो सकता है. तो क्या हम सिर्फ उतना ही सोच रहे हैं या फिर उसके बाहर भी देख रहे हैं? Always keep an eye on that. Bigger perspective, bigger way of thinking, larger idea of life. Prioritize yourself, prioritize how you think, and never let anyone or anything control your mind. Just be aware of that. This was a reminder, you already know. This is what I would tell my younger sister. Definitely. Somewhere I've also told this, I've also taught this to myself. Still do, continue to do so. Still have lots to learn and lots to share. But अभी के लिए इतना ही. I'll close the video now. एक बार शुरू करने के बाद वीडियो बंद करने का मन नहीं करता. Now you compare how I started this video and how I'm ending this video and the dilemma that I had. What should I even conclude out of this? वो मैं खुद देख लूँगी. चलो, okay, bye. And you should know how we end our videos like. Jai Shri Ram.
मैंने ऑलरेडी क्लोज़ किया था वीडियो, लेकिन मुझे याद आया कि सी ड्रामास के बारे में बात कर रहे हैं और खुद के बताया भी नहीं कि कौन से सी ड्रामास पसंद है, तो वीडियो का पॉइंट क्या था? एक्चुअली मेन पॉइंट्स तो मैंने कवर कर लिए, बेसिक बात तो मुझे वो करनी थी, पर ये भी शेयर कर देते हैं। लेट मी नो व्हाट सी ड्रामास यू लाइक ऑफ कोर्स. The first C drama that I watched was I don't remember the name. लेकिन the second C drama that I watched was Amidst the Snowstorm of Love. I really enjoyed acting of those actors. Yeah, acting बहुत अच्छी करते हैं. Then I enjoyed watching 12 Letters. I enjoyed watching You Are Desire. Yeah, the same actor. You Are Desire में मुझे the emotional maturity of the characters, that's what I enjoyed the most. Emotional maturity to an extent, लेकिन फिर भी थी, काफ़ी हद तक थी, जो नहीं होती ना हाई स्कूल ड्रामाज में उतनी, लेकिन उसमें दिखी. दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच. लेकिन मैंने वो पूरा नहीं देखा है. यू आर डिज़ायर मैंने आधा ही देखा है. लेकिन वो जो अच्छा वाला पार्ट होता है वही मुझे पसंद आता है. फिर उसके बाद वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और वो सैड पार्ट शुरू हो जाता है, वो नहीं देखती मैं किसी भी ड्रामा में. आई डोंट इवन नो इफ यू आर कॉलिंग मी अ सी ड्रामा वॉचर. इतना सब कुछ बोलने के बाद नाउ आई एम टेलिंग यू कि मैं पूरे देखती भी नहीं. I know you also don't watch, you also skip and watch. 12 Letters स्किप नहीं किया था वो, लेकिन छोटा भी था तो पूरा देखा था. आई कैन नॉट वॉच इट अगेन. लेकिन इट वॉज वो. हाँ, मोबियस भी मुझे बहुत पसंद आया था. मुझे टाइम ट्रैवल वाले बहुत पसंद आते. टाइम ट्रैवल वाला रीसेट भी है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया ना. That was the first time travel C drama that I watched. That was really fun. इतना टाइम लेके मैंने 4 बता दिए. आप भी बहुत सारा टाइम लेके मुझे बता दो, अपने एक आध बता दो. और अगर याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल दूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.